کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی؟ آخر پاکستان بنا ہی کیوں؟ ہندوستان کے ساتھ ہی رہتے تو کیا برا تھا؟ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک. پاکستان کیوں بنا؟ ایک خواب کی تعبیر یا تاریخ کا حادثہ؟ کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی؟ ہندوستان کے ساتھ ہی رہتے تو کیا برا تھا؟ کیا دو قومی نظریے میں واقعی کوئی حقیقت ہے؟ I am on my mission and I can tell you nothing about the present. کیا ہمیں دھوکہ دیا گیا یا واقعی کوئی سالڈ ریزن تھا؟ بٹوارے کا ذمہ دار کون تھا؟ کانگریس یا مسلم لیگ؟ How could you separate them? They live in every village. That was one of the objections to partition. ہندو اور مسلمان مل کر کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ اگر تقسیم نہ ہوتی تو کیا آج ہماری حالت زیادہ اچھی ہوتی؟ اتنی بڑی اکانومی، اتنی بڑی مارکیٹ میں ہوتے، اتنی قربانیاں دے کر، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کر کے، 10 لاکھ سے زیادہ جانیں گوا کر، کروڑوں کو بے گھر کر کے، آخر ہمیں کیا ملا؟ آخر پاکستان بنا ہی کیوں؟ بنا ہی کیوں؟ کبھی رات کو سکون سے بیٹھ کر سوچا ہے، یا شاید اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں، اس ٹینشن اور مہنگائی کے دور میں سکون سے بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا؟ بھائی نہ بجلی ہے، نہ گیس پوری آتی ہے، نوکری ملتی نہیں، اور ٹی وی کھولے تو لگتا ہے کہ بس ابھی مارم ماری شروع ہو جائے گی. ایسے میں یہ جو اپنا ملک ہے نا پاکستان، اپنی دھرتی، کبھی تو اس پر جان قربان کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن کبھی اس کے حالات دیکھ کر اگر سچ پوچھیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو مایوسیاں ہیں، خاص طور پر اگر آپ نوجوان ہیں، ہاتھ میں ڈگری ہے لیکن مستقبل، اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو پھر دماغ میں کچھ سوال جنم لیتے ہیں. ان میں سے ایک سوال ایسا بھی ہے جو کرنے کی ہمت شاید ہمارے باپ دادا نے تو کبھی نہیں کی، لیکن آج کا نوجوان، آپ اور میں، یہ ضرور سوچتے ہیں کہ یار کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی؟ آخر پاکستان بنا ہی کیوں؟ ہندوستان کے ساتھ ہی رہتے تو کیا برا تھا؟ شاید آج حالات اتنے خراب نہ ہوتے، اتنی بڑی اکانومی، اتنی بڑی مارکیٹ میں ہوتے، اتنی قربانیاں دے کر، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کر کے، 10 لاکھ جانیں گوا کر، کروڑوں کو بے گھر کر کے، آخر ہمیں کیا ملا؟ سوال بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے، لیکن ہمیں یہ سوال خود سے کرنا ہوگا. اس کا جواب نوجوانوں کے سامنے لانا ہوگا کہ ہمارے بڑوں نے اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی پہچان، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. آخر کیوں؟ کون سی ایسی آگ تھی ان کے سینوں میں؟ کون سا ایسا خوف تھا ان کی آنکھوں میں؟ وہ خون کی ندیاں، وہ آنسوؤں کے دریا، وہ لٹی ہوئی عزتیں، وہ نیزوں پر ٹنگے بچے، کیا وہ سب ایک غلطی تھی، ایک غلط فہمی تھی، ایک سیاسی چال تھی، ایک ہسٹوریکل ایکسیڈنٹ تھا؟ کیا ہمیں دھوکہ دیا گیا یا واقعی کوئی سالڈ ریزن تھا؟ کوئی ایسی مجبوری، کوئی ایسا خطرہ تھا جس نے کروڑوں انسانوں کو یہ سب کچھ داؤ پر لگانے پر مجبور کر دیا؟ آج اسی $1 ملین کویسچن کا جواب ڈھونڈیں گے، پوری ایمانداری سے، بنا کسی ڈر کے، بغیر کسی جذباتی نعرے کے. ہم تاریخ کے آئینے میں جھانکیں گے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کریں گے کہ آخر پاکستان کیوں اور کیسے بنا، اور 1947 سے پہلے کیا ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے انقلاب کو سبسکرائب ضرور کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. کہانی شروع ہوتی ہے بہت پہلے سے. اس سرزمین کی کہانی جس پر آج پاکستان قائم ہے، یہ کوئی عام زمین نہیں، یہ تہذیبوں کا گہوارہ ہے، کریڈل آف سیولائزیشنز. 5000 سال پہلے جب یورپ اور امریکہ میں لوگ جھونپڑیوں یا کچے مکانوں میں رہتے تھے، تب یہاں دریائے سندھ کی وادی میں کیا تھا؟ موئنجودڑو، ہڑپا، ایسے شہر آباد تھے کہ آج کی دنیا بھی ان کی اربن پلاننگ دیکھ کر حیران ہے. پکی اینٹیں، 2 منزلہ مکان، گرڈ سسٹم پر بنی سڑکیں، اور سب سے بڑھ کر انڈر گراؤنڈ سیویج سسٹم. جی ہاں، 5000 سال پہلے. پھر اسی سرزمین پر گندھارا تہذیب نے جنم لیا. یہ علاقہ، آج کا شمالی پاکستان، بدھ مت کا ایک عظیم مرکز بنا. ٹیکسلا جیسی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، جہاں صرف ہندوستان نہیں، چین، وسطی ایشیا، یونان تک سے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے.
ये अमन की सरजमीन थी, इल्म की सरजमीन थी। लेकिन एक मिनट, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करती चलूँ कि ये इलाका जो आज पाकिस्तान कहलाता है, तारीख में अक्सर बाकी हिंदुस्तान से काफ़ी अलग था और इसकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रही, आप सिकंदर आज़म बल्कि उससे भी पहले से शुरू करें तो ये इलाका कभी हिंदुस्तान की मरकज़ी रियासत में शामिल नहीं रहा। यहाँ का कल्चर, ज़बानें, कनेक्शन हिंदुस्तान से ज़्यादा सेंट्रल एशिया और ईरान से रहे हैं। हाँ, ये इलाका तहजीबों के संगम पर रहा, मगर इसकी अपनी इनफरादियत हमेशा रही। यहाँ तक कि 8वीं सदी आ गई, एक नई आवाज़ आई, एक नई रोशनी। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह कर लिया और इस रीजन की तारीख ने एक नया मोड़ लिया। और फिर वो स्पिरिट, वो एनर्जी सामने आई जिसने आने वाली सदियों की बुनियाद रख दी। मोहम्मद बिन कासिम से यहाँ मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ। इसके बाद महमूद गजनवी आए, शहाबुद्दीन गौरी, फिर दिल्ली की सल्तनत के 5 खानदान और आखिर में द ग्रेट मुगल्स। ये सब कौन थे? आज तो प्रोपेगेंडा करने वाले कहते हैं हमलावर थे, लुटेरे थे। बिल्कुल नहीं, वो कॉलोनाइजर्स नहीं थे, वो तो एम्पायर बिल्डर्स थे। बाहर से ज़रूर आए थे, लेकिन वो यहाँ के होकर रह गए। उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया। उनका जीना, मरना, उठना, बैठना सब इसी मट्टी से जुड़ गया। उन्होंने यहाँ अजीमुशान सल्तनतें कायम की जो सैकड़ों साल तक कायम रहीं, जिनकी शोहरत उनके इंसाफ, इल्म और खुशहाली की वजह से थी। मुसलमानों ने यहाँ सिर्फ हुकूमत नहीं की, उन्होंने इस मुल्क को माला माल किया। ये जो आज हम गुर्बत का रोना रोते हैं ना, जानते हैं कभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। मुगल दौर में, ख़ास तौर पर औरंगज़ेब के ज़माने में, हिंदुस्तान दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी था। दुनिया की जीडीपी का 25%, जी हाँ, 1/4 सिर्फ हिंदुस्तान पैदा करता था। आज का अमेरिका, चीन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ बेहतरीन कपड़ा बनता था, हीरे जवाहरात थे, सोना चांदी थे, मसाले थे, दुनिया भर से दौलत खिंची चली आती थी हिंदुस्तान। फिर आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान जिन इमारतों पर फख्र करते हैं, जो दुनिया भर में उनकी पहचान है, ताजमहल, लाल किला, जामे मस्जिद, शालामार बाग, बादशाही मस्जिद, ये सब किसकी देन है? मुसलमान हुक्मरानों की। आज शिमाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़बान कौन सी है? उर्दू। ये कहाँ पैदा हुई? इसी हिंदू मुस्लिम तहजीब के मिलाप से। इस ज़बान ने फारसी, अरबी, तुर्की, मकामी ज़बानों के रंग अपने अंदर समो लिए। फिर मीर, गालिब, खुसरो, शायरी की दुनिया के ये बड़े नाम उसी दौर की पैदावार हैं। मौसीकी में कवाली, गज़ल, वो मुनफरिद अंदाज, ये भी उसी कॉमन तहजीब का हिस्सा हैं। अरे खानों को तो मैं भूल ही गई। ये बिरयानी, कोरमा, कबाब, निहारी, ये मुगलई खाने जो आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पहचान है, ये कहाँ से आए? उसी दौर में आए। तो मुसलमानों ने इस मुल्क को लूटा नहीं, इसे संवारा, निखारा, इसे एक कंपोज्ड कल्चर दिया जिसमें हिंदू और मुसलमान सदियों तक साथ साथ रहे। जी हाँ, साथ साथ रहे। लेकिन क्या वो एक हो गए? शायद नहीं। उनके अकीदे अलग, रस्म रिवाज अलग, खाने पीने के तरीके अलग, शादी ब्याह अलग, उनके हीरो अलग, उनके विलन अलग। ये हकीकत है जिसे मानना पड़ेगा। वो तेल और पानी की तरह थे, एक ही बर्तन में रहते थे लेकिन आपस में घुलते मिलते नहीं थे। उनके दरमियान एक लकीर, एक लाइन हमेशा मौजूद रही। कभी हालात ऐसे होते कि ये लकीर ज़रा धुंधला सी जाती, तो कभी बहुत नुमायाँ हो जाती। बहरहाल 18वीं सदी में मुग़ल सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी। औरंगज़ेब के बाद कोई मजबूत हाथ नहीं आया जो मरकज़ी हुकूमत को संभालता। सूबे आज़ाद होने लगे, जिसकी मर्जी जहाँ चली वहाँ अलग हो गया। मरहटे दक्कन से उठे, दिल्ली तक पहुँच गए। सिख पंजाब में ताकतवर हो गए। ईरान से नादिर शाह आया, दिल्ली को लूटा, तख्ते ताऊस ले गया, कोहिनूर ले गया। जो कमी रह गई थी वो अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली की आमद ने पूरी कर दी। पानीपत की तीसरी जंग में उसने मरहटों को हरा तो दिया, लेकिन मुगलों को भी कमज़ोर कर गया। और जब घर कमज़ोर हो तो गिद्ध नज़रें गाड़ लेते हैं। और वो गिद्ध कौन थे? अंग्रेज़। ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो मस्कीन ताजिर बनकर आए थे, अब उनकी असली चेहरे सामने आने लगे थे। वो समझ गए कि अब मौका है हिंदुस्तान पर कब्जा करने का। उन्होंने पहले बंगाल पर कब्जा किया,
फिर मैसूर पर, फिर मरहटों को हराया, सिखों को शिकस्त दी। कभी जंग से, कभी साजिश के जरिए, कभी धोखे से वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान को निगलते गए और फिर उन्होंने आखिरी निवाला लिया 1857 में। लेकिन एक मिनट, आप सोच रहे होंगे ये मैंने कौन सी तारीख की क्लास शुरू कर दी, पाकिस्तान का इन सब चीज़ों से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल है, क्योंकि जब तक आप इस तारीख को नहीं समझेंगे आपको पाकिस्तान समझ में नहीं आएगा। 1857 से पहले हालात क्या थे और फिर 1947 तक कैसे पहुंचे, ये सब जानना बहुत जरूरी है। 1857 सिर्फ एक साल नहीं, तारीख का एक खूनी मोड़ है। अंग्रेज इसे क्या कहते हैं? हाँ, गदर, सिपाहियों की बगावत। मगर ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं थी, ये जंग आज़ादी थी, हिंदुस्तान की पहली मुनज़्ज़म जंग आज़ादी। ये अवामी जंग थी। इसकी चिंगारी उठी मीरठ से, दिल्ली पहुंची, फिर कानपुर, लखनऊ, झांसी और पूरे शिमाली हिंदुस्तान में। लड़ कौन रहा था? हिंदू भी मुसलमान भी, कंधे से कंधा मिलाकर। नारा एक ही था, फिरंगी को निकालो। और क़यादत किसके पास थी? ज़्यादातर मुसलमानों के पास। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान पर सदियों से उनकी हुकूमत थी, जंग का तजर्बा था और सबसे बढ़कर दिल्ली का तख्त उनके पास था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बूढ़े थे, बेख्तियार थे, लेकिन हिंदुस्तान में राज तो उसी का माना जाता था जो दिल्ली पर हुक्मरान होता था। तो तमाम बागी फौजें दिल्ली में जमा हुई और बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। ये सिंबॉलिक लेकिन बहुत अहम स्टेप था। मुसलमानों ने इस जंग में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया, सबसे आगे रहे, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। उनके उलमा ने जहाद के फतवे दिए क्योंकि वो समझते थे कि ये सिर्फ वतन नहीं, ये दीन बचाने की जंग भी है। लेकिन जीत ना सके। क्यों? वसाइल की कमी। अंग्रेज़ों के पास जदीद हथियार थे, पैसा था, मुनज़्ज़म फ़ौज थी, और हमारे पास जज्बा था लेकिन डिसिप्लिन नहीं, जोश था लेकिन जदीद हथियार नहीं। फिर पूरे हिंदुस्तान ने साथ भी नहीं दिया। जनूबी हिंदुस्तान खामोश रहा, पंजाब और बंगाल ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। गद्दारियाँ भी हुईं जो हमेशा से होता आया है। तो जंग हार गए और फिर अंग्रेज़ ने जो इंतकाम लिया, उफ खुदाया। चंगेज़ खान, हलाकू खान की याद ताज़ा हो गई। उन्होंने चुन चुन कर बदले लिए। किससे? सबसे ज़्यादा मुसलमानों से, क्योंकि वो समझते थे कि इस बगावत के असल जिम्मेदार मुसलमान हैं। वो समझते थे कि मुसलमान दोबारा सर उठाएंगे, ये दोबारा हुकूमत का ख्वाब देखेंगे, तो इनकी कमर तोड़ दो हमेशा के लिए। फिर दिल्ली को मक्तल बना दिया गया। हफ्तों तक कत्लेआम जारी रहा। कोई घर महफूज नहीं, हर गली में लाशें बिछी थी। उलमा तो चुन चुन कर मारे गए। हजारों को सरेआम फांसियां दी गईं, तोपों से बांध कर उड़ा दिया गया, जिंदा जला दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, मुसलमानों की क़यादत ख़त्म करना। बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करके उन्हें जिलावतन कर दिया गया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया और उनके सर काट के थाल में सजाकर बाप को पेश किए गए। ये था तहजीब याफ्ता सिविलाइज्ड अंग्रेज का इंसाफ। अब नए निज़ाम में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं था। उनकी नौकरियां ख़त्म, तालीम तबाह, मदारिस बंद कर दिए गए। उनकी ज़बान फ़ारसी और उर्दू की जगह अंग्रेज़ी को सरकारी ज़बान बना दिया गया। वो मुसलमान जो कल तक इस मुल्क के हुक्मरान थे, अशराफिया थे, एक अजीम तहजीब के वारिस थे, अब वो क्या थे? गुलाम, गरीब, अनपढ़, बेरोज़गार, और हाँ, अंग्रेज़ की नज़र में गद्दार भी, और कुछ हिंदुओं की नज़र में भी। ज़रा खुद को एक लम्हे के लिए उस ज़माने के मुसलमान की जगह रख कर देखें। आपके आबाओ अजदाद बादशाह थे, आप इल्म फ़न के मालिक थे, और आज आप सड़क पर हैं। आपका घर छिन गया, आपका रोज़गार छिन गया, आपकी ज़बान छिन गई, आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं, और उल्टा आपको जलील किया जा रहा है कि आपकी शनाख्त मिटाई जा रही है। कैसा महसूस करेंगे आप? क्या आपके दिल में एक गहरा खौफ नहीं बैठ जाएगा? इनसिक्योरिटी का एहसास पैदा नहीं होगा कि अंग्रेज़ के बाद अगर हिंदू अक्सरियत का मुकम्मल राज आ गया तो हमारा क्या बनेगा? क्या हमें जिंदा भी छोड़ेंगे? क्या आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिग्निटी,
اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے پریشان نہیں ہوں گے؟ یہی وہ خوف تھا، یہی وہ عدم تحفظ تھا، یہی وہ زخم تھا جس نے میرے نزدیک، میرے خیال میں پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ 1947 سے کہیں پہلے، کسی لیڈر کے اعلان سے کہیں پہلے، یعنی پاکستان کا جنم اصل میں 1857 کے بعد جنگ آزادی کی راکھ سے ہو گیا تھا۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد مسلمان قوم اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، مایوسی، بے بسی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، غصہ تھا انگریزوں پر، لیکن لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایسے میں اس اندھیرے میں ایک آواز اٹھی، ایک فکر ابھری، ایک شخصیت سامنے آئی، سر سید احمد خان۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہوش میں آؤ، انگریز اب تمہارے حاکم ہیں، لڑنے سے کچھ نہیں ملے گا، پہلے لڑ کر دیکھ لیا، اب لڑو گے تو مزید کچھ لے جاؤ گے۔ ان سے نفرت نہ کرو، انہیں سمجھو، ان کی زبان سیکھو، ان کا علم حاصل کرو، ان کے سسٹم میں داخل ہو، اور پھر اسی نظام کے اندر رہ کر اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرو، تعلیم حاصل کرو، نوکریاں لو، معاشی طور پر مضبوط بنو۔ یہ باتیں اس وقت کے جذباتی مسلمانوں کو بہت بری لگی۔ انہیں لگا کہ سر سید ہمیں غلامی سکھا رہے ہیں، ان پر کفر کے فتوے لگے، انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی، لیکن وہ ڈٹے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے سروائیول کا واحد راستہ اب یہی ہے، اور انہوں نے صرف باتیں نہیں کی، کام بھی کیا، رسالے نکالے، کتابیں لکھی، اور سب سے بڑھ کر علی گڑھ میں ایک کالج قائم کیا 1875 میں، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، جو بعد میں علی گڑھ کالج کہلایا۔ یہ صرف ایک کالج نہیں تھا، یہ ایک تحریک تھی جہاں سے مسلمانوں کی ایک نئی نسل تیار ہوئی جس نے جدید تعلیم بھی حاصل کی اور اپنی مذہبی شناخت بھی برقرار رکھی۔ اسی علی گڑھ نے آگے چل کر پاکستان بنانے والے کئی لیڈرز پیدا کیے۔ تو یہ تھا سر سید کا کارنامہ، لیکن سر سید صرف تعلیم کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے، اور یہیں پر وہ بات آتی ہے جس نے آگے چل کر پاکستان کی پہلی اینٹ رکھ دی۔ اصل میں سر سید ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ وہ ہندوستان کو ایک خوبصورت دلہن کہتے تھے جس کی دو آنکھیں ہیں، ہندو اور مسلمان۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں قومیں مل کر رہیں، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سر سید جیسے انسان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تھا 1867 کا اردو ہندی تنازع۔ بنارس میں کچھ ہندو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری عدالتوں اور دفاتر میں اردو کی جگہ ہندی کو رائج کیا جائے۔ اردو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، یعنی الف بے کی شکل میں، جبکہ ہندی دیونگری اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی۔ اردو مسلمانوں کے قریب تھی، ان کی کلچرل آئیڈینٹی تھی۔ تو یہ مطالبہ دیکھنے میں تو صرف زبان کا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب کو بدلنے کی سوچ تھی۔ اردو کو ختم کرنے کا مطلب مسلمانوں کی کلچرل آئیڈینٹی پر حملہ تھا۔ سر سید یہ دیکھ کر ہل گئے، انہیں شدید دھچکا لگا۔ انہوں نے کہا کہ آج جھگڑا ایک چھوٹی سی بات پر ہے، آگے چل کر یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ تھا وہ تاریخی لمحہ جب سر سید احمد خان نے پہلی بار یہ کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ یہ تھا دو قومی نظریہ، دو قومی نظریہ جو راتوں رات پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے بیج تاریخ کی گہرائیوں میں تھے، 1857 کے زخموں میں تھے، اور اب اردو ہندی تنازع نے اس پودے کو پانی دے دیا تھا۔ سر سید نے صرف اس ابھرتی ہوئی حقیقت کو پہچان لیا تھا اور بیان کر دیا تھا بس، اور ان کا یہ خیال، یہ ڈائگنوسس آگے چل کر پاکستان کی بنیاد بنا۔ سر سید نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی، بتا دیا تھا کہ راستہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ 1885 میں ایک پارٹی بنی، انڈین نیشنل کانگریس، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ تمام ہندوستانیوں کی جماعت ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، سب کی۔ اور شروع میں کچھ مسلمان کانگریس میں شامل بھی ہوئے، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنا سیاسی کریئر اسی پارٹی سے شروع کیا تھا۔ جناح جو خود کبھی کانگریس میں تھے، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے، لیکن پھر وہ وقت آیا جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ کانگریس کے وعدے الگ ہیں اور دعوے الگ، لیکن قائد اعظم سے بہت پہلے مسلمان یہ بات سمجھ چکے تھے۔ انہیں نظر آنے لگ گیا تھا کہ کانگریس کی سیاست مسلمانوں کے مفاد میں نہیں،
और शुरू ही में एक वाकया भी ऐसा पेश आया जिसने मुसलमानों का शक यकीन में बदल दिया था। ये थी वो 1905 में बंगाल की तकसीम, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल। अंग्रेजों ने बंगाल के बड़े सूबे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तरफ मगरिबी बंगाल जहां हिंदू अक्सरियत थी, दूसरी तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मशरिकी बंगाल। मुसलमानों ने इस पार्टीशन का खैर मकदम किया क्योंकि अब उन्हें मशरिकी बंगाल में अक्सरियत मिल गई थी। उन्हें ऐसा लगा कि अब उनके हुकूक महफूज होंगे और उनको कुछ तरक्की के मौके भी मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस और हिंदू कौम परस्तों ने आसमान सर पर उठा लिया। शदीद एहतजाज, मुजाहिरे, बॉयकॉट। उन्होंने कहा ये बंगाल को तकसीम करने की साजिश है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। मुसलमान ये देखकर हैरान रह गए कि जो तकसीम हमारे फायदे में है उस पर कांग्रेस इतना शोर क्यों मचा रही है। उन्हें समझ आ गया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उनके लिए मुसलमानों का फायदा नहीं, नुकसान है। तो मुसलमानों को लगा कि उन्हें अपने हुकूक के लिए अपनी अलग सियासी जमात बनानी पड़ेगी। और फिर दिसंबर 1906 में ढाका में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान रहनुमा इकट्ठे हुए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। मुस्लिम लीग ने पहला बड़ा मुतालबा क्या किया, ये कि राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, यानी जुदागाना इंतखाबात का हक। अब इसका क्या मतलब है? ये कि मुसलमान वोटर सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार को वोट देंगे, उनके लिए नशिस्तें मखसूस होंगी। ये अंग्रेज हुकूमत ने मुतालबा मान लिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसने मुसलमानों की अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी को कानूनी हैसियत दे दी। इसके बाद बहुत कुछ हुआ जिसकी तफसील में हम जाएंगे नहीं, बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन हालात 1929 में उस मकाम पर पहुंच चुके थे कि मुसलमान सख्त मायूसी और बेयकीनी के माहौल में थे। तब एक आवाज़ गूंजी, एक पुकार बुलंद हुई जिसने मुसलमानों को सिर्फ हुकूक मांगने से आगे एक नई मंजिल का रास्ता दिखाया। ये आवाज़ थी डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इकबाल ने मुसलमानों को उनकी खोई हुई शनाख्त याद दिलाई। उन्हें बताया कि तुम सिर्फ अक़लियत नहीं, तुम एक जिंदा कौम हो। तुम्हारा अपना एक नज़रिया हयात है। तुम्हारा दीन सिर्फ पूजा पाठ नहीं, ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, एक तहजीब है। वो देख रहे थे कि मगरिब की नेशनलिज्म और हिंदुस्तान की मुमकिना जमहूरियत मुसलमानों की इनफरादियत को निगल जाएगी। इकबाल ऐसी मुश्तरका कौमियत के खिलाफ थे जो मुसलमानों की अपनी पहचान ख़त्म कर दे। बहरहाल मुसलमानों की सियासी जद्दोजहद का ये सफ़र सिर्फ अपने हक़ के लिए नहीं था, बल्कि इसमें हिंदुस्तान की आज़ादी का जज्बा भी शामिल था। इसी जज्बे के तहत 1916 में एक हिस्टोरिकल मोमेंट आया, लखनऊ पैक्ट। उस वक्त मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ऐसी मिसाल कायम की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस पैक्ट के पीछे असल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था और कांग्रेस ने भी पहली बार मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात का हक तस्लीम किया, यानी मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। ये उनकी एक बड़ी सियासी कामयाबी थी। तो इंडिया की दोनों बड़ी पार्टीज एक मेज़ पर एक मकसद के लिए, ये उम्मीद की एक किरण थी, एक कोशिश थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान अपने हक और शनाख्त के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन ये इत्तेहाद कायम नहीं रह सका। ये खूबसूरत ख्वाब जल्द ही ग्राउंड रियलिटी से टकरा गया। लेकिन लखनऊ पैक्ट ने ये ज़रूर साबित किया कि मुसलमान अपने पॉलिटिकल वजूद का एहसास रखते हैं और इसके लिए हर लेवल पर स्ट्रगल करेंगे। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू और मुसलमान में दूरियां बढ़ती चली गईं और इसमें पहला बड़ा किरदार अदा किया 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने। कांग्रेस के रहनुमा जवाहरलाल नेहरू ने मुतालबा किया कि जुदागाना तरीका इंतखाब को मनसूख किया जाए। जी हाँ, उनके कहने के मुताबिक किसी कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। फिर एक और मुतालबा भी किया जिसने मुसलमानों को हिलाकर रख दिया। नेहरू ने हिंदी को सरकारी ज़बान बनाने का मुतालबा किया। ये लखनऊ पैक्ट की खुली खिलाफवर्जी थी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के जो मुतालबात माने थे, नेहरू रिपोर्ट ने सब पर पानी फेर दिया। तब कायदे आज़म ने जवाब में अपने मशहूर 14 नुकात पेश किए। ये कोई जज्बाती नारे नहीं थे, बल्कि मुसलमानों के हुकूक के लिए एक वाज़ेह डॉक्यूमेंट था। इसमें असम्बलीज़ में मुसलमानों के लिए मुनासिब नुमाइंदगी की बात की गई थी, उनकी मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी और सिंध को बम्बई से अलग एक सूबा बनाने की बात भी शामिल की गई थी। हर मुतालबा
मुसलमानों के लिए एक महफूज मुस्तकबिल की गारंटी देने वाला था और ये एक खुला ऐलान था कि कांग्रेस और अंग्रेज़ों के मुकाबले पर मुसलमान अपने किसी हक से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और फिर यही वो 14 नकात थे जिनकी वजह से मुसलमानों की जिद्दोजहद तेज़ होती चली गई, यहाँ तक कि 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में इकबाल ने वो कह दिया जिसने हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, शिमाल मगरबी सरहदी सूबे, सिंध और बलोचिस्तान को मिलाकर एक वाहिद रियासत बना दिया जाए। मुझे लगता है कि शिमाल मगरबी हिंदुस्तान में एक मुत्तहिदा मुस्लिम रियासत का क़याम कम से कम शिमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों का हतमी मुकद्दर है। ये पहली बार था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से इतने वाज़े अल्फाज में एक अलग मुस्लिम रियासत का नक्शा पेश किया गया हो। यह ख्वाब इकबाल का था, मगर इस ख्वाब को हकीकत बनाने वाला अभी लंदन में था, मोहम्मद अली जिन्ना। सर सैयद का नजरिया, मुस्लिम लीग का कयाम, इकबाल का ख्वाब, सब कुछ सामने आ चुका था, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत और खुद मुस्लिम लीग की क़यादत भी हिंदुस्तान की तकसीम पर शायद तैयार नहीं थी। वो अब भी एक मुत्तहिद हिंदुस्तान के अंदर रहने पर राजी हो सकती थी। इस दौरान कायदे आज़म लंदन से वापस आकर मुस्लिम लीग की क़यादत संभाल चुके थे। 1933 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर चौधरी रहमत अली का मशहूर पम्फलेट पाकिस्तान नाउ और नेवर सामने आया, जिसमें अलग रियासत के लिए पहली बार पाकिस्तान का लफ्ज़ तजवीज़ किया गया था। मगर खुद कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने इस मुतालबे को गैर संजीदा और नाकाबिले अमल तजवीज़ करार दे दिया था। यानी अब भी मिलकर चलने के इम्कानात थे, लेकिन फिर 1937 से 1939 के वो 2.5 साल आए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। गोया मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। लेकिन इन 2.5 साल में हुआ क्या था? असल में 1937 में इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस जीत गई और 11 में से 7 सूबों में गवर्नमेंट बनाई। जिन सूबों में कांग्रेस की हुकूमत बनी, वहां उसने क्या किया? मुसलमानों को साथ मिलाने की कोशिश की, मखलूत हुकूमतें बनाई? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस अक्सरियत के नशे में थी। उसने मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और ऐसा रवैया अपनाया जिससे मुसलमानों के वो तमाम खदशात, वो तमाम डर सच साबित होने लगे। वंदे मातरम, वो गीत जिस पर मुसलमानों को बहुत एतराज़ था, उसे सरकारी तकरीबात और स्कूल्स में लाजमी करार दे दिया गया। मुसलमान क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं की गई। फिर आई वारधा स्कीम, जिसे विद्या मंदिर स्कीम भी कहते हैं। अब भला ये क्या था? ये था गांधी जी की सरबराही में बनाया गया एक नया तालीमी मंसूबा, जिस पर शदीद हिंदू मजहबी रंग था। मुस्लिम तारीख और सकाफत मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दी गई और बच्चों को अहिंसा और बुत परस्ती की कहानियाँ पढ़ाई जाने लगी। इसका नतीजा लाजमन ये निकलना था कि उर्दू भी दीवार से लग जाए। अब हर जगह हिंदी को फ़रोग दिया जाने लगा, इसे सरकारी ज़बान बनाने की बातें होने लगी, सरकारी मुलाजमतों में हिंदुओं को तरजीह मिलने लगी। कहीं फसादात होते तो पुलिस और इंतज़ामिया ज़्यादातर हिंदुओं का साथ देती। बहरहाल 2.5 साल का ट्रेलर देखकर मुसलमानों की आंखें तो खुल गई। उन्हें यकीन हो गया कि अगर अंग्रेज़ों के होते हुए कांग्रेस का ये रवैया है, तो जब गोरा चला जाएगा और हिंदू अक्सरियत का मुकम्मल राज कायम हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा? हमारी मजहबी आज़ादी, हमारी सकाफत, हमारी ज़बान, हमारा रोज़गार, हमारा मुस्तकबिल सब खतरे में पड़ जाएगा। और ये सिर्फ मुस्लिम लीग का प्रोपेगेंडा नहीं था, ये लाखों मुसलमानों का एक्सपीरियंस था। मुस्लिम लीग ने बाकायदा रिपोर्ट्स शाये की, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, फजले हक रिपोर्ट, जिनमें ज़्यादतियों के सबूत पेश किए गए, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। यूं इन हालात में मोहम्मद अली जिन्ना को भी हिकमत अमली बदलनी पड़ी। उन्होंने हिंदुस्तान के तूफानी दौरे किए और मुसलमानों को मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना शुरू किया। कायदे आज़म को अच्छी तरह पता चल गया था कि रास्ता एक ही बचा है, अलहदगी का रास्ता। और फिर 23 मार्च 1940 का दिन आ गया। लाहौर में मुस्लिम लीग का तारीखी इजलास हुआ, जिसमें शेर बंगाल मौलवी फजले हक ने एक करारदाद पेश की, और इस करारदाद में पाकिस्तान का लफ्ज तक नहीं था।
लेकिन हिंदू प्रेस ने इसे फौरन करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया, और शायद अच्छा ही किया, क्योंकि अब मंजिल वाज़ेह हो चुकी थी। मुसलमानों ने अपना अलग वतन मांग लिया था, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अंग्रेज कांग्रेस की तरह हिंदुस्तान को तकसीम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने आखिर तक बड़ी कोशिश की। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भी किया, जिसके मुताबिक मुस्लिम इलाकों को इंडियन कन्फेडरेशन में रहते हुए खुद मुख्तारी दी जाती। मुस्लिम लीग ने प्लान मंजूर भी कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने ना कर दी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान का आखिरी मौका भी ज़ाय हो गया। कायदे आज़म ने ऐलान कर दिया, बातचीत खत्म, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, पाकिस्तान। और फिर फैसला हो गया, हिंदुस्तान तकसीम होगा, पाकिस्तान बनेगा। लेकिन अंग्रेज जाते जाते भी डंडी मार गए। उन्होंने मुस्लिम अक्सरियत के कुछ इलाके भारत को दे दिए, जैसे गुरदासपुर। क्यों? ताकि भारत को कश्मीर का ज़मीनी रास्ता मिल जाए। यूं मसला कश्मीर की बुनियाद पड़ गई। एक ऐसा मसला जो आज भी जिंदा है, बल्कि आज पहले से कहीं ज़्यादा बिगड़ चुका है। बहरहाल 14 अगस्त 1947 की रात, रमज़ान की 27वीं शब, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए। ख्वाब पूरा हो गया, लेकिन आज़ादी की यह सुबह अपने साथ तारीख की सबसे बड़ी हिजरत और खूंरेज़ी लाई। पंजाब में, बंगाल में, दिल्ली में हर तरफ कत्लेआम हुआ। 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हुए, औरतों की इज्जतें लुटी, बच्चों को नेज़ों पर उछाला गया। ट्रेनें आईं तो लाशों से भरी हुई। इंसानियत मर गई, वहशत नाच रही थी। ये कीमत थी जो आज़ादी के बदले में चुकानी पड़ी। ये खून था जो इस नई ज़मीन की बुनियादों में डाला गया। ये कुर्बानियाँ थीं, ये आंसू, ये लहू था जो आज भी बताता है कि आज़ादी कितनी भारी कीमत पर मिलती है। इतने वाक़यात, इतने ज़ख्मों, इतने आंसुओं के बाद हम आते हैं अपने बुनियादी सवाल पर कि पाकिस्तान क्यों बना? क्या ये वाकई ज़रूरी था? इसका जवाब एक लफ्ज़ में नहीं, बल्कि चंद ठोस तारीखी और ज़मीनी हकीकतों में है। सबसे बुनियादी वजह थी प्रिजर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, यानी अलग शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़। मुसलमानों को ख़तरा था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान की अक्सरियती हिंदू तहज़ीब उनकी यूनिकनेस को, इनफरादियत को निगल जाएगी। वो अपनी शनाख्त खोना नहीं चाहते थे। इट वॉज़ अबाउट आइडेंटिटी। फिर फियर ऑफ मेजॉरिटी डोमिनेशन, यानी अक्सरियत के गलबे का खौफ भी था। ये सिर्फ सकाफती खौफ नहीं था, ये सियासी खौफ भी था और इकोनॉमिक भी। उन्हें डर था कि एक जमहूरी हिंदुस्तान में जहां हिंदू अक्सरियत में होंगे, वो हमेशा माइनॉरिटी बनकर रहेंगे। उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी, उनके हुकूक पामाल होंगे, उन्हें नौकरियों, वसाइल और इक़्तिदार में बराबर का हिस्सा नहीं मिलेगा। वो दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रह जाएंगे। ये सिर्फ वहम नहीं था, जमहूरी निज़ाम होता ही ऐसा है, और आप देख भी रहे हैं कि आज के भारत में क्या हो रहा है। तो मुसलमानों का खौफ सिर्फ नज़रियाती नहीं था, इसकी बुनियाद ठोस वजूहात पर थी, ठोस तजर्बात पर थी। 1857 में अंग्रेज़ों का लिया गया इंतकाम, 1937 के बाद कांग्रेसी राज के 2.5 साल, इन तजर्बात ने मुसलमानों को यकीन दिला दिया था कि उनके खदशात बेबुनियाद नहीं है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उनका मुस्तकबिल महफूज नहीं है। हिस्ट्री वॉज रिपीटिंग इटसेल्फ, या यूँ समझ लें कि उन्हें इस चीज़ का खौफ था कि तारीख फिर दोहराई जाएगी। फिर एक और अहम चीज़ थी सर्वाइवल और डिग्निटी का मसला। ये सेल्फ रिस्पेक्ट यानी इज्जत नफ्स और नेशनल सर्वाइवल का मसला बन गया था। क्या मुसलमान एक ऐसे मुल्क में रहें जहां उन्हें हमेशा शक की निगाह से देखा जाए, जहां उनकी वफादारी मशकूक हो, जहां उन्हें अपनी शनाख्त छुपानी पड़े, या वो एक अपना घर बनाए जहां वो सर उठा कर जी सकें? इज्जत या जिल्लत, ये था असल सवाल। मुसलमान चाहते थे एक ऐसी रियासत, एक ऐसी जगह जहां वो इस्लामी उसूलों और अपनी तहजीबी इक़दार के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, बग़ैर किसी बैरूनी दबाव के, बग़ैर किसी मुदाखलत के। तो बना पाकिस्तान। कोई हादसा नहीं था, कोई जज्बाती फैसला नहीं था। ये सदियों के तारीखी अमल, तल्ख तजर्बात, गहरे खौफ और आइडेंटिटी क्राइसिस का मंतकी नतीजा था। ये करोड़ों लोगों का इज्तिमाई फैसला था जो उन्होंने बहुत सोच समझ कर, बहुत भारी कीमत चुका कर किया था। आज जब आप पाकिस्तान के मसाइल देखते हैं, करप्शन देखते हैं, नाइंसाफ़ी देखते हैं, गुर्बत देखते हैं, तो गुस्सा आना, मायूस होना बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ सवाल उठाना भी आपका हक है, लेकिन
जब आप ये सवाल पूछें कि पाकिस्तान क्यों बना, तो अपनी तारीख को मत भूलें, उन कुर्बानियों को मत भूलें, उन वजूहात को मत भूलें जिनकी बिना पर ये मुल्क वजूद में आया। ये जानना ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कदर कर सकें इस आज़ादी की, इस शनाख्त की, इस वतन की जो आपको प्लेट में रख कर नहीं मिला, जिसके लिए आपके बुज़ुर्गों ने खून दिया है, आंसू बहाए हैं, सब कुछ लुटाया है। जब कोई आपको बहकाए, वरगलाए, ये कहे कि ये मुल्क बनना ही नहीं चाहिए था, ये गलती थी, तो आपके पास इल्म हो, दलील हो, जवाब हो। अपनी तारीख खुद पढ़ें, समझें, बल्कि मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, सिर्फ निसाबी किताबों से नहीं। हमारे बड़ों ने सिर्फ एक मुल्क नहीं मांगा था, उन्होंने एक ख्वाब देखा था, एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब जहां इंसाफ हो, बराबरी हो, खुशहाली हो, जहां हर शहरी इज्जत से रह सके। और ये ख्वाब, ये तो आज तक पूरा नहीं हुआ, ये ख्वाब अधूरा है, इसे पूरा करना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। माजी को याद रखें, इससे सबक सीखें, हाल की खामियों को पहचानें, इन्हें बदलने की कोशिश करें और मुस्तकबिल, अपना मुस्तकबिल खुद बनाएं। ये मुल्क आपका है, इसे वैसा बनाएं जैसा आप इसे देखना चाहते हैं।